Good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Okay. Can you see the screen? Yes, sir. Okay. So in the last class, we did this equation of orbit, Sir. Yes, sir. right? Okay. And we did this important result, which is r to the power n k cos theta, kn cos theta. Yes, sir. Okay. So this was the last point, right? Okay. Okay. So this was the last point, that r to the power n is equal to cos kn theta. Okay. And what was the solution for that? If r to the power n is equal to cos kn theta, then what was the solution for that? Equal to 1 by r to the power 2n plus. F is equal to 1 by r to the power 2n plus 3. Okay. So we have done the equation of orbit and differential equation of orbit. Okay. So now let's study something about circular motion. Circular motion under central force. Okay. So we are going to learn about how the circular motion happens in central force. So it is a circular motion, first of all. Radius is r0. So the circular motion, r is constant. Okay. So that means what? R dot is equal to 0. That means r double dot is equal to 0. Okay. So it is going with suppose speed v. Okay. So now tell me, what is the equation of motion? Fr is equal to m into ar. Okay. So Fr is equal to m into ar. So central force is F is equal to F r cap. Okay. So we will get F is equal to m into. What is ar? Okay. So in the circular motion, r double dot term will be cancelled. It will be 0. Okay. So the only term remaining is minus v square over r0. Okay. Minus v square over r0. So from here we can find the v.
So this is one useful equation, equation number 1. Another useful equation is angular momentum equation. So L is equal to mv r naught. This is another important equation. Okay. So in the circular motion under central force, these two equations are important and you should use them whenever it is required. Okay. So now tell me, write down a question. Write down a question. A planet is revolving around, a star of mass m, star of mass capital M, in a circular orbit, of radius capital R, Okay. The star is mass m. A planet is revolving around them in a circular motion in a radius capital R. So part A, write down what is part A. Part A is what is the orbital speed of the planet? What is the orbital speed? This orbital speed v of the planet. निकालिए आप लोग, क्या होगा? सर ये ग्रेविटेशन से Yes, you're right. Planet revolving around the star under the gravitational attraction. Okay, so the force that will be acting is gravitation. GM by R का square root, sir. GM by R का square root. Okay. So what is the equation? Equation is Fr is equal to minus m v square by radius is R, capital R. Okay. What is Fr? Gravitational force minus G capital M divided by R square. This is equal to minus m v square over R. So small m will be cancelled, minus to minus plus. So v will be equal to under root gm over capital R. So this is the orbital speed. Okay. Now write down part B. Calculate the time period of revolution. Okay. So what is time period? So first of all, tell me, this speed given value of m and r is constant. Yes, sir. Okay. So particle is moving with constant speed around this. So constant speed, that means to find the time, we can apply the formula total distance upon net speed. Okay. Yes, sir. So in one revolution, how much distance will the planet cover? 2 pi capital R. 2 pi r. By R. Okay. And what is the orbital speed? V. So this is equal to 2 pi r or divided by under root gm by r. Okay. So this is equal to 2 pi upon under root gm r to the power 3 by 2. Okay. R to the power 3 by 2.
लिख लिया सबने ये? Yes, sir. Okay. Should we move to the next slide? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now write down part C. Part C. Calculate the angular momentum of the planet. Calculate the angular momentum of the planet. Okay. So angular momentum, L is m times v times r. So L is m times, what is v? V is under root Gm by r. Gm by r into r. So L will be m under root Gm into r. Okay. So this will be the angular momentum. Now write down part वेक्टर से क्यों नहीं शो कर रहे हैं? D. What? इसको हम वेक्टर से क्यों नहीं शो कर रहे हैं? एंगुलर मोमेंटम का वेक्टर तो हमेशा प्लेन में ही रहेगा, प्लेन के परपेंडिकुलर। प्लेन के परपेंडिकुलर मतलब, तो दैट विल बी ऑलवेज आउटसाइड द बोर्ड. तो चेंज नहीं होगा, इसलिए हम लोग मतलब यूनि डायरेक्शन के लिए ले रहे हैं कि Yes, वो एक yes. ही रहे। ओके, या यू आर राइट. ओके, क्योंकि हमने लिखवाया था प्रॉपर्टीज में कि द प्लेन ऑफ Sir. मोशन डज नॉट चेंज. मिस कर गया था सर क्लास में। So the angular momentum will be L and direction will be outwards. Okay. So now D part, calculate the total energy of the system. Total energy. So now tell me what is, so first of all, what is the potential energy? Tell me. Minus Gm by r. Minus Gm by r. GM में क्या आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? हेलो. Yes, sir. Yes, sir. Okay. ये आवाज Minus Gmm by r. What will be kinetic energy? हाफ mv ऑर्बिटल स्क्वायर। Half m into v square. Okay. So half into m into, we have found v. V is under root Gm by r whole square. Okay. So kinetic energy will be Gmm by 2r. Okay. So from here, total energy will be minus Gmm by r plus Gmm over 2r. Okay. So it will be equal to minus Gmm by 2r. Okay. So potential energy is this, kinetic energy is this, and total energy is this. Okay. So you can see in circular motion, total energy is minus of kinetic energy. Total energy is minus Gmm by 2r, kinetic energy is Gmm by 2r. So total energy is minus kinetic energy. Okay. Yes. And one more thing, kinetic energy is minus
G minus potential energy by 2. Kinetic energy is gmm by 2r, potential energy is minus gmm by r. So kinetic is half of that in magnitude and minus in sign. टोटल एनर्जी नेगेटिव का क्या सिग्निफिकेंस है? What? टोटल एनर्जी के नेगेटिव होने का क्या सिग्निफिकेंस है? Total energy negative हो सकती है ना, क्यों नहीं हो सकती? When the potential energy is more negative. See here, potential energy is minus gmm by r. Here kinetic energy is gmm by 2r. Okay. So potential energy is more negative. Then kinetic energy is positive. That means the overall energy is negative. सर पोटेंशियल माइनस इसलिए आता है ना क्योंकि हम लोग इन बड़े डिस्टेंसेस के लिए इन्फिनिटी पर रेफरेंस ले रहे होते हैं। Yes, you're right. और सर जैसे mgh लिखते हैं हम उसमें क्या कहते हैं छोटे डिस्टेंसेस के लिए उसमें Yeah, रेफरेंस yeah, पॉइंट you're करेंगे right. विच चूज का। Those that part mgh we write, that is just because h is just above the surface. सर उसमें ऐसा नहीं कर सकते क्या g की वैल्यू को वेरी करवा के r के अकॉर्डिंग फिर mgh कर दे? रख सकते हैं उसमें हम। अच्छा तो सर उसमें फिर g की वैल्यू हमें सर उसमें माइनस नहीं आएगा ना फिर तो? What are you saying? सर अगर हम उससे करते हैं mgh से करते हैं g की वैल्यू अपनी ग्रेविटी की देखिए, जो mgh करते हैं उसमें हम क्या करते हैं, सरफेस पे 0 लेते हैं। हाँ सर वही मैं बोल रहा था। तो सरफेस से ऊपर पॉजिटिव हो रहा है ना, हाँ सर। है ना? तो तो सर उससे लेंगे तो जैसे जैसे हम सेंटर से दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होती जाएगी, है ना? यस सर। ओके, सो नाउ जिन लोगों ने लिख लिया है दे ट्राई क्वेश्चन नंबर सर जैसे अभी आपने बताया यस सर उसमें तो जी अगर हम पॉजिटिव लेते हैं डाउनवर्ड की तरफ तो सर उसमें तो फिर वो नेगेटिव होता है ना माइनस mgh। नहीं, पोटेंशियल एनर्जी में जी तो वैल्यू है ना 10, तो mgh लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा हाँ सर। ओके, सो सर यहाँ पे एनर्जी जो है इसका कुछ डायरेक्शन तो होता होगा ना? क्या जो एनर्जी है सर काइनेटिक एनर्जी, इसका तो कुछ डायरेक्शन होता होगा ना? एनर्जी वेक्टर है या स्केलर है? हैं? सर स्केलर है सर। तो फिर उसका डायरेक्शन कहाँ से होगा? असाइनमेंट 9.2, try question number 5. A satellite moves around a planet in a circular orbit at a distance r, है ना, जिसके ऑप्शन है 8t, 4t, t/4 and t/8. ट्राई करो सब लोग इसको। सर एक बार प्रीवियस स्लाइड थोड़ा दिखा दीजिए प्लीज। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5 सब लोग ट्राई कीजिए। एनर्जी की डायरेक्शन कहां से ले आया? सर इसमें फोर्स थीटा के डायरेक्शन में 0 होगा ना? यस डेफिनेटली। सेंट्रल फोर्स है तो सेंट्रल फोर्स में एफ Central थीटा में। क्या होता है? 0। 0। द ओनली फोर्स इज एक्टिंग इन द आर कैप डायरेक्शन। सर यहाँ जो हम लोग टोटल एनर्जी निकाले वो टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम है या फिर सिर्फ वो ऑर्बिटिंग बॉडी है? ऑर्बिटिंग बॉडी। ओके सर। ओके, सो 9.2 कर लिया आपने, 5 वाला सिंपल है क्वेश्चन। यस 80 आ रहा है। यस ओके, सो ये दिया गया है 8.2। तो सबसे पहले बताइए, हमने टाइम पीरियड निकाला है। सो टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू r⁵ फ्रॉम हियर। यस t हमने निकाला r⁵ के प्रोपोर्शनल। ओके, सो t is proportional to r⁵. Okay, so t2 by t1 is equal to r2 by r1 to the power 3/2. So t2 by t is equal to, initially time period is t,
and initially distance is r. अब उसने बोला है कि 4r पे कर देंगे, तो r2 is 4r. So 4r divided by r to the power 3 by 2. So r and r will be cancelled. So from here we'll get T2 is equal to 4 to the power 3 by 2 into T. What is 4 to the power 3 by 2? 8. 8. 4 का अंडर रूट हो जाएगा 2 और 2 to the power 3 which is 8. So आपका यहां से आ जाएगा T2 is equal to 8T. ओके, सो देखिए हमने रेडियस को 4 गुना किया है, तो टाइम पीरियड जो है 8 गुना हो गया है, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ दिस रिलेशन. द टाइम पीरियड डिपेंड्स अपॉन r to the power 3 by 2. Okay, and we'll study that in planetary motion. This is the general feature. This is one of the Kepler's law. Okay, आपने सुना होगा नाम Kepler's law का, हम पढ़ेंगे. Yes, sir. Okay, तो टाइम पीरियड जो होता है वो रेडियस के 3 by 2 होता है. Okay, now try out question number, जिनका हो चुका है, try out question number 2. Assignment 9.2, question number 2. A particle of mass 1 kg is moving in central force. Question number 2 का part A कीजिए, A part. A part. A particle of mass m is equal to 1 kg is moving in central force field given by -3 by r square plus 1 by r cap. Okay. Assuming that the particle is moving in a circular orbit with angular momentum 2 joule second, find the radius of the orbit. सर सेंट्रल फोर्स के कॉन्सेप्ट में थोड़ा डाउट है. Just 1 minute. Yes, what are you asking? थोड़ा सा बेसिक डाउट. Yes. तो जैसे कल किसी ने पूछा भी था सर कि ग्रेविटेशन का, सर मून का ग्रेविटेशन वाला भी पूछा था किसी ने क्वेश्चन. Yes. ऐसे ही सर अर्थ में और तरीके के कई सारे फोर्स लग सकते हैं ना, तो सर अर्थ में कई तरीके और फोर्स, वन फोर्स इज बाय द सन, वन फोर्स इज बाय द मून, और कई तरीके के कौन से? अगर मैग्नेटिक फोर्स भी अगर हम कंसिडर कर सर, अगर हम मैग्नेटिक फोर्स या आई मीन नो सी, मैग्नेटिक फोर्स जो है बहुत अर्थ का खुद का मैग्नेट है, तो उसकी वजह से बोल रहा है. यस सर. ओके, हाँ, तो उसका फिर क्या? तो सर ऐसे तो कई सारे, मतलब अगर ये फोर्स No, but these forces are of you can say very small order as compared to the force by the sun. ठीक है, yes, तो जब अर्थ को कंसिडर करेंगे, the force by the sun is the dominant force, so that will define the trajectory, overall trajectory. बाकी फिर उसके ऊपर से थोड़े थोड़े परटर्बेशन होंगे, मून के द्वारा क्या होगा, जैसे टाइडल फोर्सेस होंगे मून के द्वारा, टाइड में थोड़ा काम आएगा ये, बट ओवरऑल ट्रेजेक्टरी ऑफ द प्लेनेट अर्थ अराउंड द सन इज डिटरमाइंड बाय द सन ओनली. ओके सर. मतलब जो हम ये फोर्स कहते हैं, ये तो नेट फोर्स होता है ना? Force, net force means this is the force applied by the star on the planet. सर हम कोई छोटी बॉडी कंसीडर करें, अगर कोई बॉल है तो इसमें ग्रेविटी भी लग रही है, और इसमें अगर हम मैग्नेटिक फील्ड डालते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से आ गया यहाँ पे? मैं कंसीडर कर रहा हूँ. हाँ, तो सर इस तरीके की कंडीशंस में हम इसे सेंट्रल फोर्स कह सकते हैं? नहीं, सेंट्रल फोर्स मतलब उसका डायरेक्शन आर कैप में होना चाहिए और डिपेंडिंग ऑन आर ओनली. सो मैग्नेटिक फोर्स किस पर डिपेंड करता है? वेलोसिटी पे भी डिपेंड करता है. यस सर. देन इट विल नॉट बी अ सेंट्रल फोर्स. ट्राई किया ए पार्ट, क्या आया आंसर?
1 meter. कितना 1 मीटर? Yes. Okay. So A part. So in the A part, F is given as minus 3 by R square plus 1 by R. Okay. So आपका जो F है वो है F R cap. Okay. So mass is given as 1 kg. Okay, that's great. Mass is given as 1 kg. And in the part A, it is given that the angular momentum is 2 joules second. Okay. So angular momentum is also given as L is given as 2 joules second. Okay. So now tell me what is angular momentum in circular orbit? M V into R. Okay, where R is the radius of the orbit. This is given as 2. The mass is given as 1 kg. So 1 into V into R is equal to 2 kg. So from here, we'll get V is equal to 2 by R. Okay. So the speed will be 2 by R. Okay. So this is one equation of angular momentum. Now let us write the equation of force. So Fr is equal to M into AR. So mass is just 1 kg. Okay. So Fr is minus 3 by R square minus 1 by R is equal to AR is what? Minus V square by R. Okay. So minus V square by R, that means it will be equal to what? V is 2 by R. So V square will be 4 by R square. So it will be minus 4 by R cube. Okay. So now the equation becomes minus 3 by R square. So let's multiply by minus 1. So it will be plus 3 by R square plus 1 by R is equal to 4 by R cube. Okay. So now if you multiply by R cube, then the equation will be 3R plus R square minus 4 is equal to 0. Okay. So it will be equal to R square plus 4R minus R minus 4 is equal to 0. So take R as common, then R plus 4 minus 1 into R plus 4 is equal to 0. So from here we'll get R is equal to minus 4 and R is equal to plus 1. Okay. This is not possible because radius is always positive. So the answer is R is plus 1 meter. Okay. The radius of the orbit is plus 1 meter. Everybody wrote down? Yes. Yes, sir. So in this question, there is a relation between V and R is not explicitly given. It is given in the form of angular momentum. So ये वाला equation काफी useful है. MVR is L. Okay. So whenever it's necessary, use that formula. Shall we move to the next slide? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So now let us focus upon one specific case, which is inverse square law. Okay. Inverse square law. Sir, इसका second part. Inverse square law. Second part आप homework में कीजिए. किसी का mic on है, please shut it down. So inverse square law.
Okay. So inverse coil law means force law is given as minus K by R square. Okay. Minus K by R square. So if force is given by minus K by R square, then what is the potential? बताइए क्या होगा potential? Potential will be nothing but force is what? Minus del V by del R. Right? So the potential will be minus F dr. So VR will be equal to what? Minus of minus K by R square dr. So VR will be equal to minus minus plus and again 1 minus the minus K by R. Okay. So force is minus K by, for example, in gravity, the force is minus Gmm by R square. There is a R square in the denominator, but the potential energy is minus Gmm by R. So similarly, if the force is minus K by R square, then the potential energy is minus K by R. Okay. Now tell me, the force law is given. Okay. So in the last class, we did that if the equation of orbit is given, for example, R as a function of theta is given, then we can find the force law, right? Yes, sir. Yes. But inversely is also possible. If force law is given, then we can find the equation of orbit, Yes. right? Yes. So then tell me, what is the differential equation of orbit? क्या होता था? d2u by d theta square. d theta square plus U. is equal to minus mf by L square U square. minus mf by L square L square U square. u square minus mf. Here F is the force law. Minus mf by L square u square. और यहाँ पर बताइए u क्या होता था? 1 by R. 1 by R. 1 by R. Okay. तो देखिए F की वैल्यू है माइनस K बाय R स्क्वायर एंड 1 बाय R इज U, तो F ये हो जाएगा माइनस K इंटू U स्क्वायर. Okay. So from here, it will be equal to d2u by d theta square plus u is equal to minus m by L square u square into, on the place of force write down minus ku square. Okay. So the equation becomes d2u by d theta square plus u is equal to mk divided by L square. और आपको याद रखना है u is 1 by r. u is 1 by r. तो आपको याद रखना है यहाँ पे क्या क्या है? u is 1 by r, m is the mass of planet, k is what? आपको याद रखना है कि k क्या है? k is the force constant, and L is what? L is angular momentum. सर उधर F में वो साइन भी डालने हैं क्या? क्या हुआ? सर वो F में वो हाँ साइन भी बिल्कुल, डालने हैं क्या? हमने जो भी किया था, देखिए ये ऑलवेज याद रखिए कि F जो होता है वो होता है FR इंटू आर कैप, तो सारा साइन वाइन सब FR में आ जाएगा. ओके. सर लेकिन जब डेरिवेशन किया था तब तो मतलब साइन को कंसीडर करके किए थे ना? क्या किए थे? जब इस डेरिवेशन किए थे तब हाँ साइन तो को यहाँ कंसीडर पर करके साइन है ना, यहाँ पे डेरिवेशन किए थे, साइन को कंसीडर करके किए थे, मतलब F ही तो लिया था मैंने वहां पे डेरिवेशन में.
Okay. Yes, yes. डेरिवेशन में एफ ही लिया था मैंने. Yes. Okay, so now I'm just going to write down the solution for this, okay, which you have to remember. इसका जो solution आता है वो है R is equal to, so these 2-3 formulas you need to remember, okay? You don't need to care about the derivation and all these things, but you need to remember the formula. So that means equation of orbit is R is equal to L square by mk divided by 1 plus E cos theta. Okay. So this is the equation of orbit. Equation of orbit. Okay. तो L आपको पता है, M आपको पता है, E is one coefficient of integration. So E is called, क्या सुना है पहले E का नाम? It's called eccentricity. So depending on E, the curve will vary. Eccentricity. Okay. So on the basis of VE, the curve will be classified in different classes: circle, ellipse, parabola, hyperbola. We are going to do in a minute. Okay. So this is important one. You should remember this formula. That in the inverse square law, और आपको पता होना चाहिए यहाँ पे क्या है. L is what? Angular momentum. M is what? Mass. K is the force का constant जो K आता है. And E is eccentricity. And theta and R are true parameters. R theta. Okay. Eccentricity क्या होता है? Eccentricity is a parameter which classifies conical section curves. Circle, ellipse, है ना? Okay. So now let's do relation between eccentricity and energy. This formula also you have to remember. This is also important. Relationship between energy E and eccentricity E. Eccentricity E. Okay. And this formula is E is equal to under root 1 plus 2E L square by mk square. Okay. So eccentricity is 1 plus 2E L square by mk square. So these two formulas you have to remember. जिस तरीके से ये इक्वेशन आपको याद है, उसी तरीके से ये दो फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए. जहां पर E is eccentricity, E is energy, L is angular momentum. ओके. तो किसी सिस्टम का एनर्जी और एंगुलर मोमेंटम दिया हुआ है तो उसकी एक्सेंट्रिसिटी पता लग जाएगी. एंड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेंट्रिसिटी नाउ वी आर गोइंग टू क्लासिफाई डिफरेंट कर्व्स. लिख लीजिए, फिर आगे चलते हैं. सर ये टोटल एनर्जी, दिस इज टोटल एनर्जी. या राइट, दिस इज टोटल टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम या फिर जो बॉडी की बात कर रहे हो उसकी? टोटल एनर्जी मैं लिखूंगा तो मतलब बॉडी की बात कर रहा हूँ. ओके. देखिए सिस्टम की टोटल एनर्जी भी तो यही होगी क्योंकि सन तो रेस्ट पे है ना. हाँ सर. यस सर. तो ये दो फॉर्मूला आपको याद रखना है. एक इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट तो आपको याद हो ही गई होगी, d2u by d theta स्क्वायर वाली. एक r इज इक्वल टू दिस एंड e इज इक्वल टू दिस. लिख लिया, आगे चलें. यस सर. Okay. So in the system, energy and angular momentum are given, then you can find the eccentricity. Okay. So eccentricity is under root of 1 plus 2e L square by mk square. So this is the formula. Okay. सर Now tell me, यहाँ आपने 12th में पढ़ा होगा या 11th में, तो कोनिक सेक्शन में पढ़ा होगा
तो बताइए एक्सेंट्रिसिटी वर्सेस कर्व का रिलेशन में क्या है? कर्व और ऑर्बिट। बताइए एक्सेंट्रिसिटी अगर ग्रेटर देन 1 हो तो कर्व कैसा होता है? हाइपरबोला कोनिक सेक्शन क्या होता है? पैराबोला पैराबोला हाइपरबोला हाइपरबोला। एक्सेंट्रिसिटी अगर 1 होता है तो कर्व क्या होता है? पैराबोला पैराबोला। What if eccentricity is less than 1? Ellipse. What if eccentricity is 0? सर्कल It is circle. Okay. So we have classified eccentricity versus the orbit. है ना? तो eccentricity greater than 1 hyperbola, 1 parabola, less than 1 ellipse, and equal to 0 is circle. Now tell me, eccentricity is given by this. So eccentricity 1 से बड़ा कब होगा? यहाँ पर है अंडर रूट ऑफ 1 प्लस समथिंग, है ना? यस सर। तो L स्क्वायर पॉजिटिव है, M पॉजिटिव है, K स्क्वायर पॉजिटिव है। तो ये वाला टर्म पॉजिटिव कब होगा? जब E ग्रेटर देन 0 होगा, टोटल एनर्जी पॉजिटिव हो गया सर। है ना? दिस इज टोटल एनर्जी। ठीक है, तो एक्सेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 कब होगा? अंडर रूट 1 प्लस समथिंग। तो ये क्वांटिटी जब पॉजिटिव होगी तब एक्सेंट्रिसिटी जो है ग्रेटर देन 1 होगी। तो E इज ग्रेटर देन 0। अब बताइए एक्सेंट्रिसिटी 1 कब होगी? जब ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, है ना? यस सर। मतलब Yes. E इज इक्वल टू 0। अब एक्सेंट्रिसिटी लेस देन कब होगा? तो 1 प्लस समथिंग, मतलब ये वाला टर्म नेगेटिव होगा। That यस means सर। E is less than 0. Now eccentricity is 0. That means ये वाला टर्म होगा -1. तो E will be, माइनस mk स्क्वायर बाई 2l स्क्वायर yes, you are correct, minus mk square by twice L square. Okay. So देखिए, डिपेंडिंग ऑन द एनर्जी आपकी एक्सेंट्रिसिटी चेंज होगी तो आपका ऑर्बिट चेंज होगा। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि हमारा जो सर्कुलर केस आया था उसमें टोटल एनर्जी नेगेटिव आई थी। सर्कुलर केस किया था हमने अभी जस्ट पहले क्वेश्चन। यस सर। तो सर, टोटल एनर्जी minus- नेगेटिव आई थी तो सर्कल बना था हमारा। यस। So this is the classification on the basis of सर energy. नेगेटिव हाइपरबोलिक सर प्रोजेक्ट टोटल में तो होता होती है नहीं ना है ना। Just 1 minute, एक एक करके पूछिए आप। सर टोटल एनर्जी एक बार और बता दीजिए सर। देखिए एक्सेंट्रिसिटी वर्सेस ऑर्बिट आपको पता है, यस सर। तो एक्सेंट्रिसिटी E का फॉर्मूला ये है ना। यस सर। तो E ग्रेटर देन 1 कब होगा? जब ये वाला टर्म ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि 1 तो पहले से है। यस सर। E ग्रेटर देन 0। सिमिलरली ये करेंगे। ओके सर, थैंक यू सर। सर ये ट्रेजेक्टरीज जो है वो मतलब ऑर्बिट को डिफाइन करेंगे क्या, हाइपरबोला या पैराबोला को? यस यस, ऑर्बिट। सर कैसे, मतलब वो तो जैसे स्केप कर जाएगा ना किसी एक के फील्ड से, अगर क्योंकि डाइवर्जिंग होता है हाइपरबोला पैराबोला एक एक्सटेंट के बाद। हाँ, तो जो है हमारा जो प्लेनेटरी ऑर्बिट्स है वो एनर्जी लेस देन 0 वाला होती है, तो इसीलिए एलिप्स या सर्कल होता है। प्लेनेटरी ऑर्बिट्स बाउंडेड होता है ना, हाँ सर। तो इसीलिए ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 वाले प्लैनेट्स नहीं होते, क्योंकि वो कॉमेट्स होते हैं। समझिए, कॉमेट्स हाँ वो सर। आते हैं और सन के अराउंड जस्ट होके चले जाते हैं। दे आर नॉट बाउंडेड टू सन, बट प्लैनेट्स आर बाउंडेड टू सन। वो लोग ग्रेविटेशनल से वो बेंड हो जाते हैं। तो यूजुअली जो होता है, यूजुअली जो हमारे होते हैं ये प्लैनेट्स इधर होते हैं, है ना, ये होते हैं। और सर, जो ये कॉमेट्स टाइप होते हैं जो इस तरह से होते हैं, जो फ्लाई बाय ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं उनको, है ना, कि जस्ट हाँ उसके सर, ऑर्बिट flyby। के आसपास आए और फिर चले गए। सर तो ये इनका सिग्निफिकेंस क्या है सर, टोटल एनर्जी पॉजिटिव होने का मतलब क्या इसमें शो क्या हो रहा है? जैसे इन्हें तो टोटल पता एनर्जी चल रहा है। पॉजिटिव है, मतलब काइनेटिक एनर्जी इज डोमिनेटिंग टर्म देयर। अच्छा, मतलब सर वो अगर हम सर उसको किसी फील्ड में रोटेट करवा दे, मतलब किसी बाउंड हाँ। करवा दे, अगर हम अर्थ के बहुत ही नजदीक ले आए, तब भी सर नहीं पॉसिबल है क्या उसमें कि उसकी नहीं, kinetic पॉसिबल नहीं energy- है ना, क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि अर्थ उनको रोक नहीं पाता। अच्छा,
ओके Okay. So these are the planets and they are bounded. किसी का आवाज जो है इको हो रहा है, एक बार देख लेना। आपकी सर हो रही ई है। लेस देन आपकी हो रही है ठीक है सर सर यस ई लेस देन 0 में सर ये क्वांटिटी सर ये जो प्लस 2e l स्क्वायर बाय m के हाँ। स्क्वायर लिखा है ये सर ज्यादा हाँ। मतलब 1 से कम हो जाए तो फिर तो ये इमेजिनरी हो जाएगा सर कॉम्प्लेक्स। नहीं, ई लेस देन 0 मतलब एनर्जी लेस देन 0 है सर हाँ, मतलब तो ये 1 प्लस समथिंग है ना, तो 1 माइनस समथिंग हो जाएगा। हाँ तो सर 1 से ज्यादा हो जाए सर ये नेगेटिव में क्वांटिटी तो नहीं, टोटल तो 0 से तो बड़ा ही है, ई लेस देन 1 एंड 0 से बड़ा है ना। इमेजिनरी तो जब होगा ना जब टोटल 0 से छोटा हो जाए, मैंने सिर्फ ये बोला ये 0 से छोटा हो जाए। ओके सर थोड़ा देर पहले आपने बताया कि ई जो है वो एक मतलब जो मूविंग बॉडी है उसका एनर्जी है बट यहाँ पे कैपिटली यस सर बट यहाँ पे लिखा हुआ है टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम तो सिस्टम का अरे सर यहाँ पे सिस्टम का टोटल एनर्जी मतलब देखिए सन के अराउंड घूम रहा है, तो सन तो हम वहीं पे मान रहे हैं ना, वहीं पे रेस्ट पे है, या कोई भी सेंट्रल फोर्स में, और जो Yes. ओरिजिन है वो तो वहीं का वहीं है ना। यस सर तो यहाँ पे मतलब कि मतलब जो जिससे This रिस्पेक्ट is- में जिससे मतलब रिस्पेक्ट में एनर्जी ऑफ द प्लेनेट। ओके, नाउ टेल मी, ठीक है, लिख लिया सबने ये? यस सर सर ओके, सर यस जैसे हम कहते हैं कि ऑर्बिट में अगर कोई स्पेशल ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो सर उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होनी जरूरी नहीं है ना, स्पीड ऑर्बिट में क्या है, कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। हाँ हाँ, तो उसका सर उसका स्पीड है मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट होना जरूरी नहीं है ना, जैसे नहीं, सर्कल और वो सर्कल में कांस्टेंट होगा, एलिप्स में कांस्टेंट नहीं होगा। एलिप्स में भी नहीं होगा और बाकी किसी भी केस में नहीं होगा। हाँ, सर्कल में क्योंकि क्या होता है, सर्कल में एक ही रेडियस होती है, तो एल कांस्टेंट है हाँ। तो वी भी कांस्टेंट हो जाएगा। एलिप्स में सर 2 वैल्यूज आएंगी मतलब फिर तो मेजर माइनर के। हाँ, एलिप्स में तो डिपेंडिंग ऑन आर आपका वेलोसिटी स्पीड चेंज होगा, वो हम देखेंगे किस तरीके से चेंज होगा। ओके सर। ओके, लिख लिया सबने ये? यस सर So now let's do one concept which is escape velocity. Escape velocity. लिखिए इसके बारे में, escape velocity के बारे में क्या होती है बताइए। escape velocity minimum required velocity to escape a gravitational pull. yes, okay, right, लिखिए it is the velocity, it is the minimum velocity, sorry, it is the minimum velocity to be given to an object so that it escapes the gravitational attraction, of the planet and goes to infinity. ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन के बाद रिपीट करिए प्लीज सर So that it escapes gravitational attraction of the planet and goes to infinity. Okay, तो देखिए इसका मतलब है ये एक प्लेनेट है, सपोज मास m का,
और इस प्लेनेट सपोज r डिस्टेंस पे कोई एक पार्टिकल है ना, तो उसको कितनी वेलोसिटी दी जाए ताकि वो इसके फील्ड से बाहर चला जाए, है ना, कहां पे चला जाए, इन्फिनिटी पे। समझ गए बात? ओके, तो इसको ऑर्बिट से इसको देना है वेलोसिटी, इसका किसी ऑर्बिट से? नहीं, किसी भी डायरेक्शन में दे सकते हैं। मतलब सर सरफेस से भी दे सकते हैं ना? हाँ, किसी भी डायरेक्शन में दे सकते हैं, बट उतनी होना चाहिए ताकि वो उसके बाहर चला जाए, अट्रैक्शन के बाहर, है ना, ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर। ओके, तो बताइए, जो आपकी पॉइंट 1 है सपोज यहाँ पर, और पॉइंट 2 सपोज इन्फिनिटी पे चला जाए उसके बाद में, तो एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल बी कंजर्व्ड। ओके, सो पार्टिकल है ये, सपोज इसका मास m है, तो E1 इज इक्वल टू E2। ओके, बताइए E1 कितना होगा, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ m v स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी 1 पे, mg माइनस g m बाय r। ओके, इज इक्वल टू E2, तो काइनेटिक एनर्जी इज हाफ m into v infinity square, and what will be the potential energy at infinity? 0, because r will be infinity, so this term will be 0, so it will be 0. Okay, so from here the small m will be cancelled first of all. Okay, so from here we will get the equation v square is equal to 2g m by r plus v infinity square. Okay, so this is the velocity at r. अब बताइए इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, इसकी मिनिमम वैल्यू कब होगी, जब इन्फिनिटी पे इसकी वेलोसिटी 0 है, मतलब जस्ट पहुंच रहा है धीरे धीरे। समझ के बात? तो कितना है मिनिमम वैल्यू इसकी, 2g m by r when v infinity is equal to 0। तो v escape आपकी कितनी आ जाएगी, escape velocity आपकी किसी प्लेनेट पे, अगर मास m है प्लेनेट का और डिस्टेंस r पे कोई पार्टिकल है, तो उसकी escape velocity है अंडर रूट ऑफ 2g m by r। सर लेकिन ये पॉसिबल कैसे होगा सर, इन्फिनिटी पे 0 वेलोसिटी होना? मतलब जस्ट उसके, देखिए वो पार्टिकल है ग्रेविटी के जस्ट बाहर पहुंच जाए और फिर वहां से बहुत कम वेलोसिटी से चलने लगे, मतलब टेंड्स टू 0 वेलोसिटी से। पॉसिबल क्यों नहीं हो सकता, हो सकता है सर। जस्ट एस्केप वाला हम लोग केस कर रहे हैं इस पे। क्या हुआ, जस्ट एस्केप वाला केस कर रहे हैं कि जस्ट उसको ग्रेविटेशनल फील्ड को पार कर जाए, बस इतनी दिया जाए कि उसके फील्ड से बाहर चला जाए वो। मिनिमम सर, मिनिमम एनर्जी इतना हो कि वो पैराबोला कर्व हो। बिल्कुल सही कहा आपने, हो बिल्कुल सकता है सही कि हाइपरबोला भी बने। हाँ सर यस सर, अगर सर भी इन्फिनिटी 0 हो गया तो सर एनर्जी कैसे कंजर्व होगा? एनर्जी कैसे कंजर्व होगा, तो v इंफिनिटी 0 है, तो मतलब टोटल एनर्जी 0 है, तो जितनी काइनेटिक एनर्जी है उतनी ही नेगेटिव में पोटेंशियल एनर्जी है, तो कंजर्व ही तो है। यस सर। ओके, समझ के बात? यस सर। ओके, तो मतलब नेट एनर्जी तो 0 हो गई, नेट एनर्जी 0 हो गई, सही कहा आपने, क्योंकि ये 0 हो गया, मतलब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी बराबर हो गई। तो वही का मतलब है ना, मतलब देखिए पोटेंशियल एनर्जी का काम क्या है कि उस ऑब्जेक्ट को बांधे रखना अपने पास, है ना, तो हम उसको इतनी काइनेटिक एनर्जी दे दे कि उस पोटेंशियल एनर्जी के बैरियर को तोड़ दे वो, है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी इतनी है नेगेटिव में, तो उतना ही पॉजिटिव में हम काइनेटिक एनर्जी दे दें उसे, ताकि नेट 0 हो जाए। तो नेट 0 हो जाए तो वो इन्फिनिटी पे चला जाएगा फिर। तो सर पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी रहेगा तभी तो 0 होगा। हाँ यस, हाँ, काइनेटिक इज माइनस ऑफ पोटेंशियल,
क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है। यस सर। ओके सर यस, जस्ट 1 अगर मिनट, सर जस्ट 1 मिनट। हाँ बताइए। अगर सर ये अगर ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन के बाहर चला जाएगा फिर वो आर पे डिपेंड क्यों करेगा? आर डिपेंड क्यों करेगा मतलब? मतलब सर मतलब जैसे कि ये अगर 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 जब वो इंफिनिटी पे चला जाएगा लेकिन फिर भी वी स्केप में हम लोग आर का मतलब वो टर्म आ रहा है तो वी डिनोमिनेटर स्केप तो ये है, यहाँ पर वेलोसिटी कितनी दी जाए, तो जितना अच्छा ज्यादा वो पास होगा उतनी ज्यादा वेलोसिटी देनी पड़ेगी ना आपको। यस ओके, लिख लिया सबने ये? सर ये जितना भी निकाले अभी हाइपरबोला, एलिप्स और पैराबोला, ये तो पाथ ऑफ द ऑब्जेक्ट है ना सर? हाँ हाँ। जितने पाथ ऑफ ना ऑब्जेक्ट। लिख लिया सबने ये? यस सर। ओके, सो नाउ सपोज आप एक पार्टिकल है मास m पे और r पे है, एक r डिस्टेंस पे है ये, ठीक है। तो जनरल उसकी एनर्जी क्या लिख सकते हैं हम? r पे है और वेलोसिटी सपोज v है, तो जनरल एनर्जी हम क्या लिख सकते हैं पार्टिकल की? हाफ m इंटू वी स्क्वायर माइनस जी m m बाय r, तो इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम? हाफ m को कॉमन ले लें अगर हम, तो बचेगा क्या? वी स्क्वायर माइनस 2g m बाय r। तो एनर्जी आपकी है किसी भी पार्टिकल की हाफ m वी स्क्वायर माइनस, व्हाट इज 2g m बाय r? इट इज v स्केप स्क्वायर। समझ के बात? हमने क्या देखा था? 2g m बाय r इज v स्केप स्क्वायर, राइट? यस सर। ओके, तो अब बताइए, जो टेबल है हमने देखा था, टेबल हमने देखा था एक्सेंट्रिसिटी वाला, एक्सेंट्रिसिटी और ऑर्बिट और एनर्जी, ठीक है। तो एनर्जी इज हमने देखा था ग्रेटर देन 0, देन एक्सेंट्रिसिटी इज ग्रेटर देन 1, देन ऑर्बिट इज हाइपरबोला। Energy is equal to 0 and eccentricity is equal to 1, then orbit is parabola. Energy is less than 0 and orbit is eccentricity is less than 1, then orbit is ellipse. Okay. Energy is ठीक है, तो ये लिखा था हमने। अब यहां पर देखिए करस्पॉन्डिंग स्पीड के बारे में बात कर लेते हैं। तो एनर्जी ग्रेटर देन 0, तो एनर्जी हमारी ये है, तो एनर्जी ग्रेटर देन 0 कब होगी? V is greater than V escape. V is greater than V escape. इसका मतलब क्या है? V greater than V escape मतलब क्या है कि हमने उसको इतनी काइनेटिक एनर्जी दे दी कि वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी से ज्यादा है, मतलब नेगेटिव में है पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी को ओवरकम कर दिया, तो E इज ग्रेटर देन 0। अब बताइए 0 कब होगी ये? काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगा तो है ना, तो V इज इक्वल टू V escape, तो वी स्केप है ना। तो V escape मतलब क्या है कि जस्ट फेंका जाए ताकि वो बाहर चला जाए, मतलब जस्ट फेंका जाए मतलब क्या है? काइनेटिक एनर्जी किसको बैलेंस आउट कर रही है? एग्जैक्टली पोटेंशियल एनर्जी को, है ना। और E इज लेस देन 0 मतलब V इज लेस देन V escape, तो escape वेलोसिटी से कम वेलोसिटी है, मतलब वो ऑर्बिट को क्रॉस कर पाएगा क्या? उसके अट्रैक्शन को No, sir. नहीं कर पाएगा, मतलब वो इलिप्स में ही घूमता रहेगा उसके आसपास। जो फर्स्ट केस में काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है और पोटेंशियल एनर्जी कम है ना? बिल्कुल सही कहा आपने, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, मैग्नीट्यूड ज्यादा है उसका। दूसरे केस में काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल बराबर है, मतलब जस्ट उतना दे दिया कि उसकी पोटेंशियल के बराबर हो गया, और तीसरे केस में कम है।
सर्कुलर वाले में करे तो उसका कोई सेंस नहीं होगा ना फिर। हाँ, सर्कुलर वाले में आप कर सकते हैं, बट जनरल एक क्लासिफिकेशन ये। ओके, सर ये भी स्केप में ये इंफिनिटी सर कैसे करते हैं, थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिएगा एक बार। क्या? ये जो सर भी स्केप में जो इनिशियल में डेरिवेशन कर रहे थे सर, वहाँ भी इंफिनिटी इक्वल टू 0 करके कैसे किया है? हमने देखा वेलोसिटी इतना रिक्वायर्ड है, अब उसने Yes, बोला है sir. मिनिमम कितना रिक्वायर्ड है, तो मिनिमम रिक्वायर्ड है जब इन्फिनिटी पे 0 हो जाए वो जस्ट जाके। मतलब ये मैग्नीट्यूड उसकी वेलोसिटी मिनिमम 0 होगी सर। हाँ हाँ, ओके सर। सर इन्फिनिटी पे अगर कुछ वेलोसिटी है तो हम ये कह सकते हैं ना कि वो हाइपरबोलिक ट्रैजेक्टरी पे गया होगा। या यू आर राइट, और अगर 0 है मतलब पैराबोलिक गया होगा। यस सर। लिख लिया सबने ये? यस सर। ओके सर यस। जैसे अगर हम लोग मतलब इसेंट्रिसिटी के अगर मतलब पॉइंट से देखें तो अलग अलग ऑर्बिट कैसे पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि हम लोग जैसे रिलेटिविटी में आइंस्टीन ने बताया कि ऑर्बिट जो है मार्स का अलग अलग होता वही है। तो मैंने बोला ना आपको, एनर्जी पे डिपेंडेंट है ऑर्बिट, तो एनर्जी लेस देन 0 है तो इलिप्स होता है क्योंकि बाउंडेड है, ग्रेटर देन 0 है तो हाइपरबोला होगा क्योंकि वो बाउंड कर ही नहीं पाएगा उस ऑब्जेक्ट को। ये है ना कि मतलब एक ही प्लैनेट का अलग अलग इवोल्यूशन मतलब टाइम में अलग अलग एनर्जी कैसे पॉसिबल है? एनर्जी अलग क्योंकि अलग पॉसिबल क्यों नहीं है ना, एनर्जी जितनी उसकी काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड करेगा ना, काइनेटिक एनर्जी जितनी ज्यादा होगी उस हिसाब से ऑर्बिट तय होगा उसका। तो सर जब मार्स प्लेनेट है तो प्लेनेट का आखिर टोटल एनर्जी तो फिक्स ही होना चाहिए, तो अलग अलग नहीं नहीं, अरे डिफरेंट टाइम पे सब प्लैनेट्स बने तब सबकी अलग अलग एनर्जी बनी होगी ना, कुछ कुछ तो जिसकी जो एनर्जी है उस हिसाब से उसको वाला ऑर्बिट मिल गया। ओवरऑल ऑर्बिट मिला, बट सर हर बार रिवोल्यूशन के मतलब जब जब करता है तो अलग अलग ऑर्बिट में करता है ना, तो अलग अलग ऑर्बिट कैसे पॉसिबल है सर हर टाइम में? अरे एक प्लेनेट का तो एक ही ऑर्बिट है, बट मैं बोल रहा हूँ कि जिस प्लेनेट की जो वेलोसिटी है उस हिसाब से उसको वाला ऑर्बिट मिल गया है, जिस प्लेनेट की जो एनर्जी है। मेरा वो क्वेश्चन नहीं है सर। अरे ये क्लास के बाद देख लें आपका। यस सर। ओके सर एलिप्टिकल और सर्कुलर वाले में वी इंफिनिटी का कोई सीन नहीं होगा ना? नहीं नहीं, कि वो तो सर एक बाउंड स्टेट में करेगा फिर वो। बाउंड स्टेट, या यू आर राइट। ओके सर जैसे आपने तब जैसे आप हम एसएचएम कर रहे थे तब आपने वो ई और वी के ग्राफ बता के आपने बताया था कि कैसे बाउंड होता है। तो सर यहाँ पर भी हम लोग वैसे कुछ कर सकते हैं क्या? हाँ, ये वाला बाउंडेड मोशन का मैं आपको बताऊंगा जब इफेक्टिव पोटेंशियल पढ़ेंगे, तब आप वापस से आऊंगा इस पे बताऊंगा किस तरह से बाउंडेड है। ओके सर। सर मतलब यहाँ पे भी कर सकते हैं, मतलब एलिप्स या ऐसे बिल्कुल कुछ बिल्कुल कर सकते हैं, बाउंडेड कर सकते हैं बिल्कुल, पोटेंशियल एनर्जी कर्व को देख के कर सकते हैं। ओके सर। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्लैनेटरी मोशन। ओके, तो प्लैनेटरी मोशन में हम इसमें पढ़ेंगे केपलर्स लॉ। तो सबसे पहले लिखिए प्लैनेटरी मोशन क्या होता है। प्लैनेटरी मोशन तो लिखिए it is motion of a planet. It is motion of a planet around a star, or motion of a satellite around a planet. सर स्टार के बाद क्या है? Motion of a planet around a star or motion of a satellite around a planet, मतलब वही ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन में जो मोशन होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है,
ये फोर्स लॉ क्या होता है आपका? फोर्स लॉ होगा आपका F is minus Gmm by R square. ओके, तो अब लिखिए अगला पॉइंट, केपलर्स लॉज ऑफ मोशन। केपलर्स लॉज, केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। तो सबसे पहले दीज लॉज आर नॉट थियोरेटिकल लॉज like Newton's law. These are empirical laws. These are empirical laws. Empirical laws मतलब क्या होता है बताइए? ऑब्जर्वेशन बेस। बिल्कुल सही कहा। These are based on observation. मतलब जो देखा गया है स्काई में कि किस तरह के प्लैनेट्स, किस तरह के सैटेलाइट्स सन के अराउंड किस ऑर्बिट में घूम रहे हैं, उनका मोशन क्या हो रहा है, किस पर्टिकुलर टाइम पे कहां पे है, ये सब ऑब्जर्व किया गया देख के, और उस बेसिस पे मॉडल बनाया गया। जो केपलर ने ऑब्जर्व किया उनको लिख दिया गया। ठीक है, तो इसके पीछे एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन बेस्ड है ये। ओके, बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, एक तरह से मॉडल है ये, है ना। ये तो न्यूटन से पहले था ना सर? ये न्यूटन से पहले था, सही बात। तो इसीलिए थ्योरी जो होता है फिजिक्स में इसी तरह से डेवलप होती है कि पहले जो है कुछ स्पेशल केस देखा जाता है, उसका मॉडल बनाया जाता है टू मेक सेंस ऑफ दैट फिनोमेना, है ना। तो उसका मॉडल बना के फिर बाद में लोग क्या करते हैं कि अब थ्योरेटिकली इसको जनरलाइज कैसे करें, तो न्यूटन ने फिर उसको जनरलाइज किया, है ना। तो ये जो है न्यूटन से पहले था। ओके, सो राइट डाउन द फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ लिखिए, all the planets revolve around the sun, revolve around the sun in elliptical orbits, in elliptical orbits. सारे जो प्लैनेट्स हैं, केपलर ने ये देखा कि जितने भी है ना, अर्थ, मार्स, वीनस, मरकरी, जुपिटर, सैटर्न, वो सन के अबाउट जो है, दिस इज सन, इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहे हैं। इस तरीके से कोई एक इस तरह से घूम रहा है, सारे के सारे इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहे हैं। अरे न्यूटन के पहले दिया था इसने? यस यस, इट इज बिफोर न्यूटन। तो सर बाद में फिर जब न्यूटन ने आके वो सर्कुलर ऑर्बिट, न्यूटन ने फिर अपना लॉज ऑफ मोशन दिया, ग्रेविटेशन फोर्स दिया, उससे फिर उसने जनरलाइज किया कि ये कैसे आ रहा है ये, है ना। केपलर ने सीधा ऑब्जर्व किया, उसको लिख दिया कि ये पाया जाता है नेचर में, है ना। न्यूटन देन ट्राइड टू एक्सप्लेन दैट व्हाई दीज आर इलिप्टिकल ऑर्बिट्स एंड ऑल दिस थिंग्स। ठीक है, फिर आइंस्टाइन ने न्यूटन के केस में कुछ एरर्स थी, उनको पॉइंट आउट करके फिर जनरल रिलेटिविटी दी। मरकरी का ऑर्बिट वगैरह, मरकरी का ऑर्बिट, यू आर राइट। सो मरकरी का ऑर्बिट क्या था कि जनरली इलिप्टिकल था, बट वो ऑर्बिट भी प्रेसिस कर रहा था। तो न्यूटन लॉ वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन दैट प्रेसिजन ऑफ द ऑर्बिट। सो फिर आइंस्टाइन ने देखा कि दिस इज एन अनोमली इन विच न्यूटन्स लॉ इज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द ऑर्बिट, सो देयर इज समथिंग मोर डीपर गोइंग ऑन, एंड न्यूटन लॉ इज अ स्पेशल केस ऑफ समथिंग डीपर। और फिर उसने स्पेस टाइम कर्वेचर दिया और जनरल रिलेटिविटी को जनरल रिलेटिविटी। Now write down the second law. Second law. A planet sweeps, SWEEP, sweeps equal area. A planet sweeps
equal area in equal interval of time. A planet sweeps equal area in equal interval of time. That is the aerial velocity of the planet is conserved. ठीक है, मतलब क्या करता है, कोई ऑर्बिट है अगर मान लो तो इस तरीके से घूम रहा है, तो इक्वल टाइम में इक्वल एरिया स्वैप करेगा। मतलब यहां पर है, सपोज T1 पे है ये, और T1 से सपोज T1 प्लस dt पे गया है, तो भी इतना ही एरिया करेगा A1 सपोज, और सपोज TA T2 से T2 प्लस dt पे गया है, तो सपोज करता है A2, तो A1 इज इक्वल टू A2। मतलब एक इंटरवल पे उतना ही एरिया, ये DA1 है सपोज, ये DA2 है, तो DA1 इज DA2, है ना। इसका मतलब क्या है, एरियल वेलोसिटी dA by dt इज कांस्टेंट। और dA by dt हमने लिखा था, क्या था सबसे पहली क्लास में, बताइए। लिखा था ये? यस। तो पहला नियम तो ये है केपलर का कि जो सारे ऑर्बिट्स होते हैं दे आर एलिप्टिकल। द सेकंड लॉ इज दैट एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट। और ये दोनों चीजें हम एनालिसिस से देख चुके हैं, है ना। अब एक तीसरा बचता है, वो लिख लीजिए, थर्ड लॉ। केपलर्स थर्ड लॉ लिखिए। The square of time of revolution, the square of time of revolution is proportional to semi-major axis, cube of semi-major axis। ओके, तो इलिप्स में आपको पता है माइनर एक्सिस होता है और मेजर एक्सिस होता है। yes sir, तो दो एक्सिस होते हैं, तो ये जो है A इज सेमी मेजर एक्सिस। ओके, तो जो टाइम पीरियड है आपका वो बताया गया है इज प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू a टू द पावर 3। मतलब t इज प्रोपोर्शनल टू a टू द पावर 3/2। ओके, सर ये रेवोल्यूशन जो है वो सिर्फ एक क्लोज्ड ऑर्बिट के लिए डिफाइंड है ना? दिस रेवोल्यूशन मतलब एक चक्कर कितने समय में लगा रहा है वो रिवोल्यूशन। ओके सर। जैसे अर्थ का रेवोल्यूशन है 365 डेज, इस तरीके से। सर स्लाइड बैक कर दीजिए एक मिनट सर। ओके सर। ओके, अच्छा स्टेटमेंट एक बार रिपीट कर दीजिए सर। यहाँ पे एरियल वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट इज कंजर्व्ड, इसका मतलब बता दीजिए। एरियल वेलोसिटी इज कंजर्व्ड मतलब इक्वल एरिया स्वैप करता है इक्वल टाइम में। ओके, तो dt टाइम में ये करता है और dt टाइम में ये करता है, तो दोनों एरिया सेम होंगे, तो dA by dt इक्वल होगा, सेम होगा। वेलोसिटी वेरी करेगा ना सर?
वेलोसिटी वेरी करेगा, बट एरियल वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ मैं। यस सर। सर थर्ड लॉ में आपने लिया है टाइम का रेवोल्यूशन लिया है, तो टाइम का रेवोल्यूशन का टाइम पीरियड का होगा। क्या हुआ सर आपने लिखा है कि द स्क्वायर ऑफ टाइम ऑफ रेवोल्यूशन, तो पीरियड हाँ, का है ना कौन सा टाइम है? सर? टाइम पीरियड के रेवोल्यूशन बता रहा है ना वो, हाँ, टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन मतलब एक चक्कर कितने में काटता है वो। ये पूरा पीरियड की बात कर रहे हैं। हाँ हाँ, मतलब सर उसमें ऐसा हो रहा है कि अगर वो डिस्टेंस पास में आ जा रहा है तो उसकी वेलोसिटी बढ़ जा रही है। बिल्कुल सही कहा अगर आपने। तो पास तभी में वो आ जा ऐसा रहा कर है ना, पाएगा ना। तो पास में आ जा रहा है तो उसकी वेलोसिटी बढ़ जा रही है, तो पास में आ जाएगा तो देखिए ये कम हो जाएगा तो ये बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से बढ़ेगी वेलोसिटी ताकि एरिया सेम रहे, एक पर्टिकुलर सेकंड में उतना ही एरिया कवर करे वो। और सर दूर तो रहेगा अर्थ तो के साथ भी थोड़ी ऐसा सी ही स्पीड होता है। चलेगा, है ना? समझ सर गए अर्थ बात? के साथ भी ऐसा ही होता है क्या? किसके साथ? अर्थ के साथ भी यही होता है, बट अर्थ में जो है आप घर जाके सर्च करना एक बार कि उसका सेमी मेजर और सेमी माइनर एक्सिस में कितना डिफरेंस है। ज्यादा डिफरेंस नहीं है। सर क्या यही रीजन है क्या कि पोल पे जो है, पोल के आसपास सर वेलोसिटी जो है कि स्पीड ज्यादा होती है अर्थ के? पोल से रिलेशन नहीं है इसका, प्लैनेट्स। ये प्लेनेट की बात हो रही है, सन के अराउंड। तो अर्थ का बोल रहे हैं कि ऐसा ही होगा क्या, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि एक बार घर जाके देखिएगा कि अर्थ की सेमी मेजर और सेमी माइनर में डिफरेंस क्या है, कितने किलोमीटर्स का है, और परसेंटेज डिफरेंस क्या है, ये चेक करना, तब सर आपको आइडिया ग्रेविटी के लगेगा। कारण वो थोड़ा कम वेरी कर रहा है ना, तभी तो हाँ, ग्रेविटी का रिलेशन बेसिस से हम लोग डिसाइड करते हैं क्या सर, एरियल सेट से? हम्म, सर बट वो तो स्पिन के कारण आता है ना सर, स्पिन क्या ओरिएंटेशन क्या के। ग्रेविटी सर, एक ग्रेविटेशनल पुल एक प्लेनेट का, वो तो स्पिन ओरिएंटेशन के अकॉर्डिंग आता है ना, रिवॉल्यूशन से उसको कोई मतलब नहीं है। ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रहे हैं? नहीं सर, ग्रेविटेशनल पुल की बात कर रहा हूँ मैं, एक प्लेनेट का। वो तो सर जैसे नहीं पोल पे, नॉर्थ पोल पे और इक्वेटर पे अलग अलग होता, तो स्पिन के नहीं, कारण दैट इज होता है। बिकॉज ऑफ द रेवोल्यूशन, दैट इज बिकॉज ऑफ द रोटेशन अबाउट स्पिन एक्सिस। जिसको बोलते हैं उसको सर हाँ ना। हाँ, ओके सर, रिवॉल्यूशन के कारण क्या चेंजेस आते हैं सर? रिवॉल्यूशन के कारण देखिए जो भी अर्थ में मेजर चेंजेस आते हैं ना, दैट इज बिकॉज ऑफ द रोटेशन, है ना? इवन द योर seasons like summer, rainy season and winter, all these are because of the rotation, not revolution. रोटेशन या रिवॉल्यूशन सर? रोटेशन, रोटेशन मतलब कि एक्सिस के अबाउट हाँ, अर्थ का हाँ। खुद का रोटेशन। वो इसलिए सर effective- वो वेदर चेंजेस का सर कॉज होता है। हाँ, वेदर चेंजेस का कॉज ये होता है कि टिल्टेड है ना एक्सिस अर्थ की। हाँ हाँ, तो वो कारण है उसका। सर, तो रिवॉल्यूशन नहीं होगा सर उसका कारण? वो मतलब डिस्टेंस नहीं अगर नहीं दूर है नहीं, सन से। दैट इज अ मिथ। सी आई ऑल्सो assume that it is because of the revolution, कि जैसे अर्थ सन के पास चले जाएगा तो ज्यादा गर्मी हो जाएगी, ऐसा नहीं है। क्यों सर? नहीं, आप एक बार देखिए, सर्च कीजिए, क्योंकि अर्थ का जो सेमी मेजर और सेमी माइनर एक्सिस के बीच का डिफरेंस है ना, बहुत कम है, लाखों किलोमीटर्स में, कुछ किलोमीटर्स है, लाखों करोड़ों किलोमीटर्स में, तो परसेंटेज बहुत कम है। तो ज्यादा इफेक्ट किसका होता है? टिल्ट का होता है। जो उसकी तरफ फेस करे रहेगा सन की तरफ, तो जैसे ही जो टिल्ट होगा ना अर्थ का, तो जैसे मान लो सन है ये यहाँ पर और अर्थ है इस तरीके से, है ना? तो अर्थ का सपोज इधर एक्सिस है अर्थ की, ठीक है? तो अर्थ की एक्सिस इधर रहेगी ना, तो यहाँ पर समर होगा। यस सर। और अर्थ की एक्सिस अगर इधर रहेगी तो यहाँ पे विंटर होगा, विंटर इधर, है ना? तो दैट समर एंड विंटर, दीज आर बिकॉज ऑफ द एक्सिस ऑफ टिल्ट, नॉट बिकॉज ऑफ द रिवॉल्यूशन। ऐसा नहीं होगा कि अर्थ जो है सन के अराउंड घूम रही है तो पास में आ जाएगा तो गर्मी ज्यादा लगेगी, ऐसा नहीं है। ठीक है, ओके सर अच्छा, जस्ट 1 मिनट, अभी एक बार देख लेते हैं, हमने असाइनमेंट 8.1 अभी तक डिस्कस नहीं किया ना? नहीं सर। अच्छा, और मैंने आपको 8.2 भी दे रखा है। यस 8.2 ट्राई कर लिया आप लोगों ने कि नहीं किया? कर रहे हैं सर। कर रहे हैं सर। कर लीजिए, फिर मैं एक्सेप्ट करूंगा यार। मैं कब मतलब काफी दिन हो गए मैंने दिए हुए, एक बार कर लेते हैं, फिर क्या है कि नहीं तो फिर पेंडिंग हो जाता है ना वो। यस सर। ठीक है, तो असाइनमेंट 8 कंप्लीट कर लीजिए आप। कल आप मुझे बता दीजिएगा क्या क्या डाउट है आपके, ठीक है? उसके बाद में फिर सेंट्रल फोर्स स्टार्ट कर देंगे हम असाइनमेंट। ओके ओके सर। ओके सर केपलर्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है से वो मतलब लोकस ऑफ बताता है कि सन का। हाँ, केपलर्स फर्स्ट लॉ बताता है दैट इंडिकेट्स लोकस ऑफ द प्लैनेट अराउंड द सन।
तो सर थोड़ा सा मतलब बता देते, एक्सप्लेन कर देते हैं क्या? उसको थोड़ा सा मतलब एक्सप्लेन कर देते सर। देखिए फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट। तो सन जो है यहाँ पे इलिप्स के फोकस पे रहेगा और जो प्लेनेट है उसका लोकस इलिप्स होगा, है ना। तो हर एक प्लेनेट अपने अपने इलिप्स में घूमेगा और सबकी थोड़ी थोड़ी एक्सेंट्रिसिटी अलग अलग होगी डिपेंडिंग अपॉन द एनर्जी ऑफ द प्लेनेट। ठीक है? यस सर। यस सर आपने अभी जो बताया सर, अर्थ का सर जो एक्सिस होता है उसके वजह से सर सीजन का चेंज आता है। तो हाँ एक्सिस का ओरिएंटेशन चेंज होता है क्या टाइम के साथ, मतलब यस रिवॉल्यूशन के यस साथ? एक्सिस का ओरिएंटेशन जनरली इट इज हाउ मच 23 डिग्रीज, राइट? Yes, sir. Yes, yeah. So that 23 degree is also changing, like that is also oscillating. एंगुलर मोमेंटम से रिलेटेड होगा ना? हाँ, angular momentum related होगा, but that there are different factors that is at play there. But you are right. जो एक्सिस है ना वो थोड़ा सा होता है, 23 से 24 के बीच में ऑसिलेट होता रहता है, ऐसा कुछ होता है। I don't know the exact data, but वो चेंज होता है, उसके वजह से काफी फर्क पड़ता है सीजन्स पे। यस सर। तो टेक्निकली देखने में तो ये लग रहा है सर कि अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो मतलब इंटेंसिटी काफी ज्यादा सन की आएगी तो अर्थ ज्यादा हीट अप करेगा, तो टेम्परेचर एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में तो वही बढ़ेगा, बोल रहा हूँ ऐसा मैं, आप होता एक बार है। देखिएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेमी मेजर एंड सेमी माइनर एक्सिस ऑफ अर्थ, आपको क्लियर हो जाएगा। सर टेम्परेचर तो प्लैनेट के एटमॉस्फेयर पे भी डिपेंड करता है, जैसे हाँ, सो प्लेनेट का एटमॉस्फेयर पे डिपेंड करता है और एटमॉस्फेयर इज मोर डिपेंडेंट अपॉन द टिल्ट रादर देन द सन। यस सर। एग्जांपल के लिए मरकरी ज्यादा पास है लेकिन टेम्परेचर वीनस का मतलब कम होता है मरकरी से, किसमें? और वीनस का ज्यादा। हाँ, वीनस का टेम्परेचर तो ज्यादा होता है बिकॉज क्योंकि एटमॉस्फेयर का डिफरेंस एटमॉस्फेयर उसका CO2 है, यस सर, कार्बन ज्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, तो ग्लोबल वार्मिंग वहाँ पे काफी ज्यादा होती है। मतलब सर आप ये कह रहे हैं कि मेजर और माइनर एक्सिस में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, तो हम वो वाला फैक्टर एलिमिनेट कर सकते हैं उसका, वो डिस्टेंस वाला, और Yes, तो जो yes, मेन फैक्टर yes. डोमिनेट करेगा वो टिल्टिंग वाला होगा। टिल्टिंग वाला होगा, you're right. तो सर इससे कोई इफेक्ट नहीं आता है क्या ये डिस्टेंस वाले? इससे बहुत कम इफेक्ट आएगा, वही बता रहा हूँ ना, बहुत ज्यादा कम इफेक्ट आएगा। ओके तो ठीक है, अब कल आप लोग असाइनमेंट कर लीजिएगा, ठीक है? 8 में कल आपसे क्वेश्चंस लूंगा और उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। ओके सर एक डाउट है सर। यस सर जैसे अर्थ है, अर्थ पे सर हर पॉइंट का जो है कि टाइम पीरियड तो सर सेम होता होगा ना सर? अर्थ के हर पॉइंट का टाइम पीरियड मतलब क्या होता है? रिवॉल्यूशन सर, टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन सर सेम होता होगा ना सर? नहीं, आप अर्थ की एक्सिस के अबाउट रोटेशन बोल रहे हैं, सन के अबाउट रिवॉल्यूशन? सर पोल के जैसे एक्सिस के अबाउट सर। एक्सिस के अबाउट रोटेशन बोल रहे हैं आप? हाँ Yes. तो हर एक पॉइंट का टाइम पीरियड सेम होता है, मतलब वो वाला पॉइंट 24 घंटे में वापस घूम के जाता है। हाँ फिर सर यहाँ पे 24 घंटे में वापस हो जा रहा है, तो यहाँ पे स्पीड सर फिक्स्ड होता होगा सभी का? स्पीड अलग अलग है ना, ओमेगा सेम है, क्योंकि देखिए हर एक पॉइंट 24 घंटे में एक ही एंगल घूमता है, कितना 2 पाई, तो ओमेगा सेम होगा ना। अब स्पीड अलग अलग क्यों होगा? क्योंकि एक्सिस से सबकी डिस्टेंस अलग अलग है, तो v इज इक्वल टू ओमेगा आर होता है। ओके हो गया सर, थैंक यू। ओके मर्क्यूरी के ऑर्बिट के लिए कुछ पूछना था इसेंट्रिसिटी से सर। हाँ जैसे मर्क्यूरी का ऑर्बिट जो है से प्रत्येक रिवॉल्यूशन मतलब करता है, तो अलग अलग ऑर्बिट ऑबे करता है। मतलब वो ऑर्बिट थोड़ा सा उसका पर्टअप होता रहता है, हर एवोल्यूशन के साथ में ऑर्बिट भी घूमता रहता है उसका। सर इसको हम लोग इसेंट्रिसिटी के टर्म में कैसे एक्सप्लेन करेंगे? एक्सेंट्रिसिटी के टर्म में एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इसलिए तो आइंस्टाइन ने बताया था। एक्सेंट्रिसिटी अगर के टर्म में करें तो न्यूटन्स लॉ के हिसाब से उसका ऑर्बिट वही का वही होना चाहिए, सेम। यस मतलब इसेंट्रिसिटी ऑर्बिट को एक्सप्लेन करने के लिए मतलब वैलिड नहीं है। वैलिड है, वैलिड इसलिए नहीं है क्योंकि पर्टअप कर रहा है वो उसका ऑर्बिट। यस सर पोटेंशियल एनर्जी से थोड़ा डाउट हो रहा है सर क्वेश्चन सॉल्व करने में। क्या डाउट हो रहा है सर जैसे अभी हमने पूछा था ना कि अगर हम किसी
अर्थ के सरफेस से लेते हैं तो सर वो डायरेक्टली हम mgh लिख देते हैं वहां पे और g की वैल्यू gm/r लेते हैं। हाँ हाँ और सर अगर हम किसी लार्ज डिस्टेंस पे देखते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी हमें वहाँ पे माइनस देखना पड़ता है। हाँ हाँ ठीक है, मैं ये कर दूंगा आपको एक्सप्लेन जब मैं ग्रेविटेशन पढ़ाऊंगा। सर अभी तो क्वेश्चन बनाना है ना सर, वो कंजर्वेशन लॉज में ऐसे क्वेश्चंस हैं सर जिसमें ग्रेविटी वाले रिलेटेड है। आपने कुछ क्वेश्चन छोड़ने को भी बोला है ना उसमें, 2-3-4 क्वेश्चंस। किसमें मैं कंजर्वेशन वाला पार्ट तो हो चुका है कंजर्वेशन ना, लॉ वो तो मैंने डिस्कस कर दिया ना असाइनमेंट। हाँ सर, उसमें 2-3 कुछ छोड़ने के लिए भी तो हाँ आपने तो बोला था ना कि वो 2-3 मैंने क्वेश्चन इसलिए किया ग्रेविटेशन। कि ग्रेविटेशन हो जाएगा उसके बाद में करेंगे। सर ये एक्सप्लेन कर दीजिएगा सर, मतलब समझा तो है सर कि ऐसे रेफरेंस पॉइंट एक बार थ्रोली आप एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या? इफ आई विल कैच अप तो ठीक है, मैं कर लूंगा अगर आप हैव 2 मिनट्स। ठीक है, तो फिर मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट क्लास में, यहीं से आपको बता दूंगा, मैं स्टार्ट कर दूंगा, है ना? अभी एक्चुअली आई हैव अनदर मीटिंग सो आई हैव टू गो अर्जेंटली। ओके सर, ओके ओके थैंक यू सर। ठीक है, ओके बाय। थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.